वे प्रोटीन से या तो दुश्मनी होती है या दोस्ती, और ये दुश्मनी इस वजह से होती है बिकॉज लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन से किडनी खराब होती है। तो आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ 300 सेकंड्स के अंदर 30 रिसर्च पेपर भी वो जो ह्यूमंस के ऊपर हुए, एनिमल्स के ऊपर नहीं, जो ये प्रूव कर देंगे कि वे प्रोटीन आपकी किडनीज के लिए बिल्कुल सेफ है, और सेफ ही नहीं, आपकी फैट लॉस, मसल गेन, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए चालू करते हैं। पेपर 1 2006 में ये क्लिनिकल ट्रायल यूएस में हुआ था। इस पेपर का कंक्लूजन, द प्रोटीन सप्लीमेंट रिजल्टेड इन ग्रेटर इंक्रीज इन टोटल बॉडी मास, फैट फ्री मास, थाई मास, मसल स्ट्रेंथ। पेपर 2 2015 में ये क्लिनिकल ट्रायल यूएस में हुआ था। इस पेपर का कंक्लूजन, हाई प्रोटीन डाइट may confer benefit with regards to body composition, no deleterious effects, and so on. Paper 3, France, 2015. Protein promoted a greater increase of muscle thickness. Paper 4, 2011, Iran trial. Protein increases explosive muscular power, body weight, and muscle strength. 2004 USA trial. Whey protein bar products both promoted exercise, training-induced lean body mass gain. 2005 Denmark trial. A minor advantage of protein supplementation during resistance training on muscle function. 2006 Canada trial. Protein supplementation during resistance training independent of source increased lean tissue mass. Paper 8 2015 Australia trial. Protein enriched diet safe and effective for enhancing muscle strength. Paper 9 2011 Germany trial. Soy protein based supplements improve body composition and metabolic function. Paper 10 2013 US trial. This study included no adverse health effect due to increased protein consumption as confirmed by blood markers of liver and kidney health. 2009 Finland trial. Conclusion, protein intake close to resistance exercise workout may alter mRNA expression in manner advantageous for muscle hypertrophy. 2015 Netherlands trials. Protein augmented muscle mass strength gains during resistance exercise training in young men. 2012 US trial. Supplementation with whey was more effective in promoting gains in lean body mass. 2020 Canada trial. Protein consumed promoting positive bone turnover, bone strength responses. हम आधे कवर कर चुके हैं. Now paper 15. 2015 US trial. 8 week of whey protein supplementation improves body composition and select performance variables. Paper 16. 2000 US trial. Conclusion, increased protein intake resulted in a significant loss of fat mass and gain of lean muscle mass. 2009 Netherlands trial. Low fat weight maintenance diets are more effective for weight control, do not adversely affect metabolic and cardiovascular risk factors. 2001 Canada trial. Males that supplemented with whey protein while resistance training demonstrated greater lean tissue muscle mass than males engaged in training alone. 2007 Australia trial. Whey protein seems to promote greater strength and muscle morphology and hypertrophy responses. 2010 Australia trial. Supplementation with whey protein improves fasting lipids and insulin levels in overweight and obese individual. 2011 Germany trials. Higher protein intake maintained muscle relative to weight loss, which in turn enhances physical function. Paper 22 2017 Canada trial. Whey protein supplementation enhances whole body anabolism and may improve acute recovery of exercise performance. 2017 Taiwan study. Whey protein can also play roles of physiological protection and performance elevation with various type of aerobic exercises. 2013 Denmark study. Whey protein augments muscles and tendon hypertrophy following 12 weeks of resistance training. Paper 25 2014 US trial. Protein alone was associated with reduced total body mass, waist circumference, abdominal fat. ये सारे 25 ट्रायल अलग अलग पॉपुलेशन में हुए हैं, जैसे कि बूढ़ों में, बच्चों में, फीमेल्स में, मेल्स में, डिफरेंट एज ग्रुप। ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक यंग एथलीट्स को पकड़ के ही ट्रायल कर लिए। पर अगर इतने सारे स्टडीज़ हैं तो हम कंक्लूड कैसे करें कि वे प्रोटीन सेफ है? कंक्लूजन के लिए पता है क्या काम आता है? और आपने देखा होगा कि ये सारी स्टडीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में भी करी गई है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉपुलेशन है, एक ही जीन्स के ऊपर, एक ही जेनेटिक्स के ऊपर इसको स्टडी करा गया है। ऐसी भी स्टडीज़ है जिसमें वे प्रोटीन इफेक्टिव नहीं दिखा था, बट वो स्टडीज़ बहुत कम है। बट हम एज अ रेगुलर रीडर कैसे एनालाइज करें कि ये स्टडीज़ सही है और वे प्रोटीन आपके लिए सेफ़ है? तो उसके लिए काम आता है मेटा एनालिसिस।
मेटा एनालिसिस एक टाइप का रिसर्च मेथड है जिसके अंदर सारी पॉजिटिव स्टडीज़, सारी नेगेटिव स्टडीज़, सारी ट्रांसपेरेंट स्टडीज़ को पकड़कर एक साथ रखकर एनालाइज करा जाता है कि इसमें से इसका बेस्ट रिजल्ट क्या है। जैसे कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट में करते हैं डेबिट और क्रेडिट को, फिर आप देखते हैं टोटल प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, जो भी है, वैसे मेटा एनालिसिस इसका फाइनल आउटकम बताता है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 26 की। ये 2018 का मेटा एनालिसिस है। इसके अंदर इन्होंने 13 वे प्रोटीन स्टडीज़ को कंपेयर करा और ये निकला इसका कंक्लूजन। वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इम्प्रूव्स बॉडी कंपोजिशन बाय मॉडेस्टली इंक्रीजिंग लीन मसल मास। 27 सेकंड मेटा एनालिसिस, 14 पेपर इसके अंदर रिसर्च करे थे। 2013 का है, 14 क्लिनिकल ट्रायल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। कंक्लूजन, supports the use of whey protein either as a supplement or combined with resistance exercise or as a part of weight loss or weight maintenance diet to improve body composition parameters। 2017 का मेटा एनालिसिस, इसके अंदर भी 13 ट्रायल्स है। whey protein accelerating the recovery of muscle function following resistance training। और एक 2017 का मेटा एनालिसिस जिसके अंदर 9 स्टडीज़ को एनालाइज किया था। कंक्लूजन, whey protein supplementation seems to improve body weight, total fat mass, some cardiovascular disease risk factor in overweight and obese patients। और ये इस वीडियो का लास्ट पेपर, सबसे बड़ा मेटा एनालिसिस जिसके अंदर 49 पेपर्स को एनालाइज किया गया था। और ये इस वीडियो का लास्ट पेपर, सबसे बड़ा एनालिसिस, आज तक का सबसे अच्छा वाला मेटा एनालिसिस जिसके अंदर 49 क्लिनिकल ट्रायल्स, यस 49 क्लिनिकल ट्रायल्स को एनालाइज किया गया था। इसका कंक्लूजन, डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंटली एनहेंस्ड चेंजेस इन मसल स्ट्रेंथ एंड साइज। तो ये रहे सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, सारे पेपर, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा सो दैट आप भी खुद से इसको पढ़ सकें। और मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ जाकर इनको खुद से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या स्टडी ग्रुप्स होते हैं, कैसे उनको एनालाइज किया जाता है, कैसे उन पर टेस्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे करी जाती है। दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए, वे प्रोटीन कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है, सिंपल दूध से बनता है, दूध से निकलता है। जैसे कि दूध से घी निकलता है, वैसे ही एक अलग प्रोसेस से दूध से वे प्रोटीन बनता है। घी खाने में तो आप कभी नहीं पूछते कि ये कुछ ख़राब करेगा आपको। वे प्रोटीन आपके लिए जब भी हार्मफुल है जब आपको दूध से एलर्जी है। अगर आपको दूध पीने पे ब्लोटिंग जैसे प्रॉब्लम्स होती है, आपका गट ख़राब हो जाता है एकदम से, आपको स्किन ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, तो सेम चीज़ें आपको वे के साथ भी एक्सपीरियंस हो सकती है। और मैं पर्सनली बताऊं तो वे प्रोटीन लेने की आपको नीड भी नहीं है अगर आप अपने नॉर्मल रेगुलर फूड आइटम से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। तो मैंने भी काफ़ी टाइम करा है। अगर आप अंडे खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो, सब चीज़ें डेली में इंक्लूड कर सकते हो, तो आराम से आपका जो बॉडी का डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कवर हो सकता है और आपको वे प्रोटीन लेने का कोई नीड नहीं है। बट अगर आप नहीं कर पाते तो एक स्कूप वे प्रोटीन से हमारी कम से कम 30 से 35% की प्रोटीन रिक्वायरमेंट ईजिली पूरी हो जाती है सिर्फ एक गिलास पानी में। ना उसको बनाने का टेंशन, ना कहीं से उसको प्रिपेयर करने का टेंशन, कुछ भी नहीं। वेरी इजी टू कंज्यूम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फूड सप्लीमेंट। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको है, वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको नहीं है। वे प्रोटीन से आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। और अगर आपको आप फ्यूचर में कोई बोलता है कि वे प्रोटीन से किडनी ख़राब होती है तो ये वीडियो उसके मुंह पे फेंक के मारिए। सी यू इन द नेक्स्ट।